we are solving the problems on finding the equation of line by using only first formula y minus y1 is equals to m into x minus x1 in different cases. This formula is called slope point form. This is called a slope point form. This is a slope point form. Okay. This formula is called what? Slope point form. So what are the other formulas? 2-point form, double intercept form, slope intercept form, normal form, and parametric form. Try to understand each and every formula. It's important for us. Slope point form is a very important formula for the finding the equation of straight line. If it is asked to find the equation of straight line, then we use the slope point formula. First formula. We use another formula is y minus y1 upon y2 minus y1 is x minus x1 upon x2 minus x1. This formula is called what? 2-point form. Then x upon a plus y upon b is 1. It is called double intercept form. Y equals to mx plus c is called slope intercept form. And when it passes through origin, it is y equals to mx. These are the important 1, 2, 3, 4. These are the 4 important formulae that we use to find the equation of line. Generally, these are the 4 formulae. Again, there are 2 equations of line, 2 ways of finding the equation. Now, this is first, this one second, this is third, and this one is fourth. There are again 5th and 6th formula to find the equation of line. But now we are going to solve the problem on finding the equation of line. Find the equation of line. The problem will be always find the equation of line. Or if you have to find equation of line. Now, sometimes the question is not to find the equation of line. We have to find something different. Though it is to find something different, we use equation of line, concept of equation of line. We use the concept of equation of line. We have known about the angle between the 2 lines. We know the general equation of line, but we don't know how to find the equation of line. And now we are going to find the equation of line in different cases. If you are given the different vertices of a triangle, can you find the equation of all the 3 sides? The question were given 2 days before. We were given the question to find the equation of the vertices of the triangle. It was given and we found the equation of altitude, equation of median, equation of perpendicular bisector, but only one is remaining, that is equation of angle bisector. It will require some again extra knowledge or extra information. Here when you were given the vertices of triangle, you found the equation of side by using 2-point form. You find the equation of median again by using finding the midpoint and 2-point form. You find the equation of altitude, drawing the perpendicular, find the slope of this, and its slope will be negative reciprocal. Use this point and slope. Then perpendicular. Then again only the bisector of the side, perpendicular bisector of side. It was altitude. And then we use the point, midpoint, and perpendicular. So only the remaining case is that angle bisector of triangle. If you have the 3 vertices of triangle A, B, C, how will you find the equation of angle bisector of this angle bisector? This will be the different question only. Now other questions are solved. We solved so many questions. There was only one question in your standard question list, and we made so many questions. Here about 3 plus 3 plus 6 plus 3 plus 3, 12 questions we made on it. So here means one question may have different type of. Now write down.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। हाँ यस, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते ना पहले क्या चल रहा है वो, इसलिए वो प्रीवियस नॉलेज बिना कभी भी आगे नहीं जाते हैं। Find the equation of line passing through the point. Very important question. Find the equation of line. Find the equation of line passing through the point. What is the point? Passing through the point. The point is -3, ये आपकी किसकी वैल्यू में गई? ये वैल्यू काय के लिए मिलेगी आपकी? कौन से? दिस वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ व्हाट? इज इट अ वैल्यू ऑफ स्लोप m? जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे ना चार तरह से, आपके पास चार फॉर्मूले है ना, y माइनस वाई वन अपॉन y2 minus y1 is x minus x1 upon x2 minus x1. Y is equals to mx plus c. Y minus y1 is m into x minus x1. x upon a plus y upon b is 1. तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? मैं हर एक को नंबर देता हूँ। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, 4. विच फॉर्मूला वी कैन यूज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट से आप कौन से नंबर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो? हेलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5. तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? Line is passing through the point. Which formula we can use? Hello, which formula we can use? Hello, which formula we can use? If you are given the equation of line, asked to find the equation of line passing through the point -3, 5. Which formula we can use? Passing through the point, then which is the possible formula out of these 1, 2, 3, 4 formula? कौन सा फॉर्मूला पॉसिबल होगा अगर पासिंग थ्रू पॉइंट है तो? फॉर्मूला वन तो और क्या चाहिए फिर फॉर्मूला वन के लिए? फॉर्मूला वन भी पॉसिबल है, फिर और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्मूला वन अगर हम यूज करें तो? और क्या चाहिए हमें? क्या टू? टू क्या है? टू क्या चाहिए? अरे हमारे पास क्या दिया है? व्हाट यू आर गिवन? लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5. ये इंफॉर्मेशन हम कौन से इक्वेशन में पुट कर सकते हो? कौन से इक्वेशन में पुट कर सकते हो? हेलो, इन विच इक्वेशन वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ -3, 5? इक्वेशन फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना, तो कौन से इक्वेशन में?
परफेक्ट बताइए 1 में। फिर x2y2 कहाँ है? x2y2 दिया है क्या? एक ही पॉइंट दिया है ना, तो एक ही पॉइंट पुट करेंगे, इक्वेशन मिलेगा नहीं। तो आगे उसके लिए और एक कंडीशन है, देखो नेक्स्ट कंडीशन, परपेंडिकुलर टू द लाइन and perpendicular to the line passing through। देखो ये पहली कंडीशन है, मैंने शुरू में बताया था आपको, पहले इसमें की कंडीशन को देखना है। passing through the point and perpendicular to the line passing through the point 25 and -36। क्वेश्चन को समझ लो, मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर है इससे जाने वाली लाइन को, और इस पॉइंट से जाती है, तो कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे? चलो मैं आपको एक इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज्योमेट्रिकल सिचुएशन इसकी, ज्योमेट्रिकली नॉट प्रॉपर बट -35 से लाइन पास होती है। समझो मेरे पास है ये -3.5, इससे एक लाइन पास होती है, और ये लाइन 25 और -36 से जाने वाली लाइन को परपेंडिकुलर, समझो मेरे पास है 25 और ये इसको ऐसे एक -36, ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर। देखिए ये हमारा पॉइंट है पहला, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन, बट ये इसको परपेंडिकुलर है। समझे क्या आप लोग सिचुएशन? तो ये लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ये गिवन लाइन है, तो कैसे फाइंड करोगे? इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो इसको हम पहले पॉइंट पी करेंगे, पी इज -35, इसको हम x1 y1 कहेंगे। अब इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालने से, हेलो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? बताइए क्या है स्लोप? हेलो, कुछ लोगों ने बताया, व्हाट इज द स्लोप? आई आस्क द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ये इस पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप। स्लोप 5 - 6 1, 2 + 3 5। स्लोप गलत बता रहे हो आप, हियर ये -36 है, इस पॉइंट को हम ए बोलेंगे और ये पॉइंट हमारा बी होगा। समझे क्या आप लोग? तो स्लोप ए पॉइंट दिया है आपको 25 और बी इज गिवन -36। स्लोप ऑफ ए बी आप फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 म्हणजे 6 - 5 -3 - 2 1/-5। समझे आप लोग? तो मुझे आप बताइए, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी बोलिए, इस लाइन को पी से पास होने वाली, तो बोलिए स्लोप ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन बोलेंगे, रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा, कौन बताएगा? ये परपेंडिकुलर है ना, रिक्वायर्ड लाइन है ये भी, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन? हेलो, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा?
हेलो, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा? हेलो, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन? एनीबडी? परपेंडिकुलर है ना लाइन, तो उसका स्लोप कितना होगा? +5। स्लोप कभी 90 होता है? स्लोप 90 होता है क्या? ये लाइन इसको परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, इसका -1/5, तो उसका उल्टा हो जाएगा। डिग्री का क्या सवाल है, स्लोप पूछा ना मैंने। ये दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, तो इसका -1/5, तो इसका +5 हुआ, तो एम की वैल्यू हो गई 5। और x1 y1 है, करो सॉल्व बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। बताओ इक्वेशन, यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हेलो, -3/5 से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, या इससे पास हो रही है, और ये परपेंडिकुलर है किसी एक लाइन। कौन से लाइन से? जो 2,5 एंड -3,6 से जाती है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है। ये जो है ना, ये पॉइंट है लाइन के ऊपर, ये -3/5, तो ये आपका पॉइंट रहेगा, x1 y1 के लिए काम आएगा ये। अब हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मिलेगा। स्लोप कैसे निकालना? ये लाइन का स्लोप निकालो और उसका उल्टा करके निगेटिव करो, निगेटिव रेसिप्रोकल। तो लाइन जब परपेंडिकुलर होते ना, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। तो इसके लिए नाम दीजिए, इसका नाम है ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी लिखो, स्लोप ऑफ ए बी। अब आप जब, आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है। आप अगर डायग्राम ड्रॉ की तो आपको सब समझना था, बट विदाउट डायग्राम ड्राइंग हम कैसे लिखते हैं? तो पहले नाम देने का है, पहले पॉइंट को ए को, ए इक्वल्स टू व्हाट, 3/5, बी इक्वल्स टू -3/6, है ना। स्लोप ऑफ ए बी निकालने का, गिवन पॉइंट स्लोप ऑफ ए बी, y2 - y1 मतलब 6 - 5 अपॉन 2/5 है ये, -3 - 2, -3 यानी 1/-5, ये भी का स्लोप हुआ। रिक्वायर्ड लाइन जो है ना, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसलिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसको फाइंड करना है उसको रिक्वायर्ड लाइन एम इज, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा, माइनस माइनस प्लस, और 1/5 का +5, एम की वैल्यू मिल गई 5। और आपके पास जो है ना, x1 y1 की वैल्यू जो है वो है -3/5। तो यूज करो ये स्लोप और ये पॉइंट, करो यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, और मुझे इक्वेशन बताइए। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए दी, एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। चलो एक काम करो, यहाँ तक तो लिखो, और आपके लिए बाद में करो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म।
इक्वल लाइन का स्लोप 5 आया, वो लाइन पास हो रही है -3 5 से। चलो, तो आपके पास है -3 5 एज ए x1 y1। आपके पास जो है -3 5 ये x1 y1 के रूप में, और यम आपका 5 है। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस कितना है 5, m कितना है 5, x माइनस माइनस प्लस 3 क्योंकि x1 है, तो y माइनस 5 कितना आएगा 5x प्लस 15। तो ये सब जीरो के राइट साइड जाएगा। 5x माइनस y माइनस माइनस प्लस 20, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। राइट डाउन। नेक्स्ट, in the equation of line, equation of line passing through the point 2 comma minus 1 and perpendicular to the line passing through। आपको एक एक वही क्वेश्चन पहला IMP है, ये एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम। 3 5 and 7 5 7 8 लिख लो, सिर्फ बाद में करो, नहीं आया तो अगले दिन हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ही डिफिकल्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 comma 2 and having x intercept plus 5 plus 5 plus 5